हेलो स्टूडेंट्स। ये हमने क्वेश्चन लिया है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। और क्वेश्चन दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डाटर सो दैट ऑल द वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। ओके, तो हम पहले देखते हैं कि इसमें कितने लेटर्स हैं। इसमें पहले आपको दिया हुआ है, पहले हम लिख लेते हैं इसको। DAUGH TER डाटर। ओके, सो देखते हैं इसमें वॉवेल्स कितने हैं। DGH TR ये आपके हो गए कॉन्सोनेंट्स, एंड AUE ये आपके हो गए वॉवेल्स। ओके, 5 और 3 8 और ये 8। ठीक, तो हमें बताना है कि इसमें से कोई भी वॉवेल्स, सारे वॉवेल्स साथ नहीं रहने चाहिए। ओके, ऑल द वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट। ओके, इसमें ये सारे लेटर्स आर डिफरेंट हैं। हम तो इसमें टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं, सो टोटल वर्ड्स आर 8 फैक्टोरियल। ओके, आप समझ रहे हैं क्यों 8, क्योंकि इसमें 8 लेटर्स हैं। सो टोटल वर्ड्स आर गोइंग टू बी 8 फैक्टोरियल। ओके, नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट द वर्ड्स इन विच वॉवेल्स आर टुगेदर। ओके, हम ऐसे वर्ड्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिसमें वॉवेल्स सब में पास पास वॉवेल्स साथ में है। ओके, तो हम यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। पहला लेटर्स 1 2 3 4 5, और इसको हम एक मानते हैं, इसको मानते हैं सपोज करो केवल एक लेटर्स है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 + 1 6 लेटर्स। ओके, तो नंबर ऑफ वर्ड्स, आप चाहे तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स in which vowels are together. Number of words in which vowels are together is equal to 5 and this like 6, so 6 factorial. Okay, and what about this? 5 + 1 is 6 factorial. Now this AUE can be arranged in 3 factorial ways. Okay, so this is going to multiply by 3 factorial. So this 8 factorial, which is total words, minus 6 factorial into 3 factorial, minus, which means words in which vowels are together. Okay, so this is going to be equal to number of words in which vowels are not together. Okay, let's solve it. So 6 factorial, take it common, and you will get 56. 8 and 7 minus 6. Okay, and 6 factorial is what? 6 factorial is going to be 720. Multiply by 5 0 and 0 0. So 36,000. Okay, 36,000 is going to be the answer of this question. Okay, let's go for the next question. And I hope that it is clear to you. And if you have any confusion, you can ask me. Okay, and let's. I am taking the next question. And question is, let's take this question. Okay, and question is, box t be the greatest integer less than or equal to t. Let a be the set of all prime factors of 2 3 1 0. Okay, so let's focus first on this 2 3 4 0. So 2 3 1 0, 2 3 1 0. Let's factorize 2 3 1 0 and find the prime factor. Okay, so I am doing this side 2 3 1 0. Let's divide by 2 and you will get 2 1 1 5 and 5. Let's divide by 5 5, or you can divide by 11 also, it's your choice. Okay, 5 2 ja and 5 3 ja and 1, and now you can divide it by 11 and 11 2 ja. Okay, and 1, you can divide it by 3 and 7,
and then by 7 and 1. Okay, so basically prime factors are, you can write like this: 2 multiply by 3 multiply by 5 multiply by 7 multiply by 11. Okay, so these are the five numbers which are primes and which are the factor of this 2310. Now this is what this set is going to be a. So a is going to be 2 3 5 7 1 1. Okay, it is given that function is defined such that from a to z with a function such that this box of log x square plus box of x cube by 5 and base is 2 here. The number of 1 to 1 function from a to the range of f. Okay, so let's first find the range. As you know that this is the greatest integer function, this is the box. Okay, and box हमेशा आपको integer देता है, तो हम क्या करते हैं इसमें 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 5 रखते हैं, 7 रखते हैं, 11 रखते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। ओके, और फिर हम डिफाइन करेंगे आपका जो रेंज, वो आपका रेंज आएगा और ए से रेंज में हम वन वन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द एफ ऑफ 2 फर्स्ट। एफ ऑफ 2, सो 2 यहाँ पर रखो, 2 power 3 that is 8, 8 by 5 is 1 point something and this is box, so 1 point something is going to be 1 because there is a box, so box है 1 point something है तो इसका आंसर होगा 1। और ये 2 है, 2 जब 4, 4 प्लस 1 इज 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 log 5 बेस 2, log 5 बेस 2। सो log 5 जो होगा बेस 2, जब अगर 4 होता तो ये आपका 2 पावर 2 होता, ये 5 है तो ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग का अगर बॉक्स लोगे तो ये आपका आ जाएगा 2। ओके, आपको समझना आया हो तो आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, ठीक ना, समझ में आ जाएगा। एफ ऑफ 3 क्या होगा, 3 को यहाँ पर रखते हैं और 3 को 3 पावर 3 इज 27 डिवाइड बाई 5, 5 पॉइंट समथिंग। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 5 प्लस 3 स्क्वायर 9, 9 plus 5 is 9 plus 5 is 14, 9 plus 5 is 14, and what about this? So 14, 14 is what, 14 is going to be between 2 power 3 and 2 power 4, 2 power 3 is 8 and 2 power 4 is 16 and 14 is between that, so answer is going to be 3 point something, answer is going to be 3 point something. If you put here this is going to 14 and 14 2 power 2, 2 power 3 something, so basically this is going to be 3. Okay, I hope it is clear to you. In the similar way, if you take f5 and I am just leaving it is for you, let's find the value of f5 and you will get something. Find f7 and find the f11. One thing you have to keep in mind, that if you find f5, f7 or f11, all the values are going to be different, all the values is going to be different. Okay, and this is homework for you, you have to try it. Okay, let's, I am just now, I am saying this value is a, this value is b, and this value is c. Now you have to solve it. Okay, let's find the value and I am solving after that. Okay, a is what, a is going to be 2 3 5 7 11, and this is z which is the range, and I am giving the name to this 2 3 a b c। हमें वन टू वन फंक्शन फाइंड आउट करना है, कैसे कर सकते हैं, सपोज करिए हमारे पास ये जो एलिमेंट 2 है, इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, पहली बार में इसके पास मैप होने की 5 पॉसिबिलिटीज है, सपोज करिए यहाँ पर गया। नाउ 3 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3 के पास आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज, मान लीजिए ये यहाँ पर गया, ठीक है, इसके पास 3 पॉसिबिलिटीज, फिर 4 और 3 फिर 2 और फिर 1। सो फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट एलिमेंट देयर इज 5 पॉसिबिलिटी एंड देन 4 एंड देन 3 and then 2 and then for last one there is only one possibility। Okay, and if you multiply it you will get the 120, so 120 is the number of one function। Okay, तो आप इसको समझें, सॉल्व करें, और आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक, हम इसको फिर से क्लैरिफाई कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन जो कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का है। तो ये जो सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं
ये सारे क्वेश्चन आपके जेई के हैं और बहुत टफ नहीं है। वैसे भी मेंस में बहुत सारे टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं। और यदि हम उनमें थोड़ी सी जान लगाएं और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें तो हम क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स व्हिच वर्टिसेस आर एट द of a regular octagon but none of whose side is the side of octagon। ओके, तो इसको पहले हमें समझना है। अगर आप समझ ले गए तो कर ले जाएंगे, नहीं समझ पाए तो नहीं कर पाएंगे। जेई में आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप उसको केवल पहले समझिए कह क्या रहा है, केवल सॉल्व करने मत लग जाइए। अगर आप क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, सॉल्व होने वाला नहीं होगा तो नहीं आएगा समझ में। ठीक, तो आप पहले उसको समझिए कहता क्या है। तो ऑक्टागन की बात कर रहा है पहले, तो मैं इसमें बनाता हूँ ऑक्टागन। ओके, तो ये ऑक्टागन आपका बनेगा कुछ, मैं इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। और ये, फिर ये, और फिर आपका ये आपका हुआ है ऑक्टागन। ओके, मान के चलिए कि ये ऑक्टागन है, ठीक ना, ये ऑक्टागन है आपका। दिया कि द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स व्हिच वर्टिसेस, इसको बहुत गहराई से पढ़ना। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स व्हिच वर्टिसेस आर एट द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगुलर ऑक्टागन but none of whose sides is the sides of octagon। ओके, हमें इसमें से ट्रायंगल्स बनाने हैं। आप जानते हैं यहाँ पर 8 वर्टिसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और 8 साइड्स हैं। ओके, तो ये बोल रहा है कि हमें ट्रायंगल्स तो बनाने हैं बट हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इनके साइड का इस्तेमाल नहीं करना है, इनके साइड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप पहले ऐसे समझिए कि हमारे पास क्या है, हमने कोई भी, ये हमारे पास कितने 8 वर्टिसेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं। तो इन 8 वर्टिसेस से हमने कोई भी 3 वर्टिसेस को चूज कर लिया। क्लियर, तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि इनमें से कोई भी कोलिनियर नहीं है, कोई 3 कोलिनियर नहीं है। ओके, 2 कोलिनियर हमेशा होते हैं, तो 3 कोलिनियर नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पास 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने 3 पॉइंट्स को चूज कर लिया। ये हमारे पास टोटल ट्रायंगल्स हैं। और जब हम टोटल ट्रायंगल्स की बात करते हैं, सपोज करिए मैंने ये साइड को ले लिया, तो उसमें ये वाला भी ट्रायंगल्स आया होगा, उसमें ये वाले ट्रायंगल्स भी आए होंगे, उसमें ये वाला ट्रायंगल्स भी आया होगा, उसमें ये वाला ट्रायंगल्स भी आया होगा, और उसमें ये वाला ट्रायंगल्स भी आया होगा। ओके, और उसमें ये वाला ट्रायंगल्स भी आया होगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे ट्रायंगल्स में आए होंगे। ठीक, तो ये जो ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल्स में हमने साइड का यूज किया है, इस साइड का यूज किया है, जो कि हमें नहीं करना है। ये बोल रहा है कि साइड का यूज नहीं करना है, ठीक ना। आफ्टर बट नन ऑफ व्हिच साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ऑक्टागन। ओके, ऑक्टागन के साइड्स का यूज नहीं करना, केवल पॉइंट्स का, वर्टिसेस का यूज करना है, साइड्स का यूज नहीं करना है। हमने यूज कर दिया। और जब हमने 3 ट्रायंगल्स को चूज किया, तो उसमें से ये वाले ट्रायंगल्स भी आ गए, उनको भी हमने काउंट कर लिया, उनको नहीं काउंट करना, तो उनको हमें हटाना पड़ेगा। तो माइनस, कितने इसमें से आए, इसमें आए 1 2 3 4 5 6। कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें, 6 ट्रायंगल्स हैं। और यही 6 ट्रायंगल्स हमें हर 8, हर हर ये 8 साइड्स पे मिलेंगे, हर एक 8 साइड्स पे मिलेंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई बाई 8। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ अभी, ये साइड साइड से, ठीक ना, मुझे कितने ट्रायंगल्स मिले, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स। मैं यहाँ पर आ जाऊँ, मैं यहाँ पर आ गया, जो जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं इस ट्रायंगल्स को फिर से काउंट करूंगा, कि नहीं करूंगा, करूंगा ना, इस ट्रायंगल्स को मैं फिर से काउंट करूंगा। तो इस प्रकार से मैंने 8 एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स काउंट कर लिए, उनको मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 8 C3 क्या होता है, 8 C3 आपका होता है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6, 5 factorial get cancel, 3 2 cancel and 56। So you will get 56 minus 8 multiplied by 5, और ये आपको आएगा 56 minus 40, that is 16, that is 16। ओके, तो आपके पास 16 ऑक्टागन
मिल ट्रायंगल्स मिल जाएंगे जिसमें जो साइड्स है वो ऑक्टागन के साइड्स नहीं होंगे। ओके, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनमें आपको बहुत सोचना होता है और जब सोचेंगे तभी आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करिए, देखिए। और